So today we are discussing next chapter, that is sales promotion, uh, and and I think we have like discussed some examples of sales promotion, why and how, major types of sales promotion, effectiveness of sales promotion, and industry case studies. So we will go through these things. So basically, sales promotion uh, is a part of promotional mix. Uh, and promotional mix include advertising, personal selling, direct marketing, internet promotion, and sales promotion. So we have discussed advertising, we have discussed publicity, and now we are discussing sales promotion. Um, so basically, sales promotion is a part of promotional mix element. So we are discussing basically promotional mix elements. We already discussed basically firstly we need to discuss sales promotion basically. So you can see on the screen, basic sales promotion, basically an incentive that companies gives either to consumers, directly to consumers, or to the traders or middleman. And why they do it? To stimulate purchases or to increase the sales of companies products. So sales promotion is basically an incentive that company gives either to consumers or middleman to promote the uh, company's sales. When company offers these incentives to middleman in order to uh, increase the sale of company, तो वो जो स्ट्रैटेजी है हम उसको कहते हैं पुश स्ट्रैटेजी, पुश सेल्स प्रमोशन स्ट्रैटेजी. और and when companies give that incentive directly to consumers to increase their sales, so that strategy is called pull strategy. For example, आपने रमज़ान में देखा होगा कि पेप्सी की आपको जो 1.5 लीटर बॉटल है वो कहते हैं जी इट इज़ अवेलेबल इन 60 रुपीज़ और 50 रुपीज़, and normally it is available in 90 and 100 rupees. And now they have reduced the price by 30 rupees from 90 to say 60 rupees. ये जो इंसेंटिव है 90 से 60 रुपीज़ पे प्रोडक्ट को सेल करने का, ये जो 30 रुपीज़ का इंसेंटिव है जो कंपनी दे रही है, ये किसको दे रही है? कंज्यूमर्स को दे रही है, आपको और मुझे ऑफर कर रही है. और अगर हम आउटलेट पे जाते हैं और हम वो 30 रुपीज़ का इंसेंटिव लेना चाहते हैं तो हम वो प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे. तो इट मीन्स कंपनी गिव एन इंसेंटिव ऑफ 30 रुपीज़ डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स. अब उस 30 रुपीज़ का इंसेंटिव लेने के लिए कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर रिटेलर के पास जाएगा. आप इस एरो को भी देख सकते हैं. कंज्यूमर विल गो टू रिटेलर्स एंड विल बाय दैट प्रोडक्ट. क्योंकि रिटेलर के पास उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो गई है, सो देयरफॉर रिटेलर विल ऑर्डर एक्स्ट्रा क्वांटिटी टू द होलसेलर. वो डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, होलसेलर से डिमांड करेगा, और देन होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर विल डिमांड एक्स्ट्रा क्वांटिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर. सो इन दिस वे, if company offers incentive directly to consumers to increase the sale of their products, तो अगर इस तरह का कोई इंसेंटिव कंपनी दे रही है तो we will call it pull sales promotion strategy. और समटाइम कंपनीज ऐसा नहीं करती. कंपनी क्या करती हैं? what the company do basically, they offer incentive
डायरेक्टली टू मिडल मैन। और मिडल मैन में कौन हो सकता है? वो डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं, होलसेलर भी हो सकते हैं, रिटेलर भी हो सकते हैं। और मिडल मैन हर कंपनी ने कंज्यूमर और अपनी कंपनी के दरमियान कितने मिडल मैन रखे हुए हैं, कितने स्टेप्स रखे हुए हैं, ये इट वेरी फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। कुछ कंपनी के हो सकता है कंज्यूमर और कंपनी के दरमियान एक आध मिडल मैन हो। समटाइम इट हैपन्स दैट बिटवीन अ कंपनी एंड कंज्यूमर देयर कुड बी सेवरल मिडल मैन। उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी हो, देन होलसेलर भी हो, और देन रिटेलर भी हो, फिर जाके कंज्यूमर तक कहीं प्रोडक्ट पहुंचती हो। ऐसा भी हो सकता है। बट हाउ मेनी मिडल मैन आर इन्वॉल्व बिटवीन अ कंपनी एंड कंज्यूमर, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो ये कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, ये आपने डिसाइड करना है एज ए मार्केट। इट इज योर डिस्क्रेशन, यू हैव टू डिसाइड इट। इफ यू बिकम अ मार्केटिंग मैनेजर and sales manager, so you could decide it कि whether we will have just one middleman or multiple levels of middleman, whether you have to have just retailers and then consumers, or you need to have wholesaler and then retailers, or you need to have distributor and then wholesaler and retailers. Like, you need to decide it basically as a company gonna decide it. But जितने भी middleman हैं, एक हैं, दो हैं, चार हैं, whatever, if company gives incentive to middleman to increase the sale of their products, तो वो अगर इस तरह की स्ट्रेटजी को, ऐसे इंसेंटिव जो जिसमें हम सेल्स को प्रमोट कर रहे हैं, एंड वी ऑफर इंसेंटिव टू द मिडल मैन, और मिडल मैन में कौन है? होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इनमें से कोई भी हो सकता है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल ऑफ कंपनी, तो दिस स्ट्रेटजी विल कॉल एज पुश सेल्स प्रमोशन स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पुल कौन है और पुश स्ट्रैटेजी कौन सी है। सुन रहे हैं मेरी बात? यस सर। मुझे कुछ मेरे साथ कोई एग्जांपल शेयर करोगे पुल स्ट्रैटेजी की एंड पुश स्ट्रैटेजी की? कोई एक एग्जांपल मेरे साथ शेयर करें कि पुल स्ट्रैटेजी कौन सी है और पुश स्ट्रैटेजी। सर पुल स्ट्रेटजी में आ जाएगा कि जब ये मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स वगैरह जब अपने कस्टमर को इंसेंटिव डिस्काउंट देते हैं डायरेक्टली और अपनी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात। तो दैट गोना बी पुल स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जांपल स्टाइलो ऑफर्स 50% डिस्काउंट, 51% डिस्काउंट डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर, तो ये पुल स्ट्रैटेजी है। डाइनर्स ऑफर्स 30% ऑफ। चैनवन अभी रिसेंटली ऑफर करा था फ्लैट 40% ऑफ। तो लाइक ये है पुलिस। बोरजान की अभी कल परसों में ऑफर देख रहा था, बोरजान वाज ऑफरिंग 40% ऑफ या पता 30% ऑफ था। अब ये जो ऑफर्स हैं दे आर डायरेक्टली अट्रैक्टिंग कंज्यूमर्स टूवर्ड्स देयर प्रोडक्ट्स। तो वो जो है हमारी पुल स्ट्रैटेजी होंगी। और पुश स्ट्रैटेजी में हम मिडिल मैन को इंसेंटिव दे देते हैं और वो हमारी कंपनी की सेल्स को प्रमोट करते हैं। फाइन। अच्छा, अब हमने देखना है, और जब हम इंसेंटिव कंज्यूमर्स को देते हैं तो वो कंज्यूमर प्रमोशंस उनको कहा जाता है, क्योंकि हम सेल्स को, जब हम सेल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, एंड वी आर ऑफरिंग इंसेंटिव डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, तो वो जो स्ट्रेटजीज होंगी उनको हम कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन कह सकते हैं, कि उस कैटेगरी को वी कॉल देम कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन। समटाइम वी ऑफर इंसेंटिव्स टू ट्रेडर्स, मिडलमैन, तो वो हम उनको ट्रेड प्रमोशंस भी कह सकते हैं कि अगर आप इतनी भाई चीज़ें बेचोगे, खरीदोगे, क्वांटिटी परचेज करोगे तो फिर हम आपको देंगे ये इंसेंटिव ट्रेड पे, एक्स्ट्रा क्वांटिटी पे, तो वो हमारा क्या है, ट्रेड प्रमोशन हो सकती है। और सम टाइम हम इंसेंटिव्स आर अटैच्ड विद द सेल्स फोर्स एज वेल, एंड वी अटैच दैट इंसेंटिव टू सेल्स फोर्स कि अगर भाई आप इतनी प्रोडक्ट, इतनी क्वांटिटी की सेल करवाओगे
इस साल में, तो देन आपको इतना बोनस मिलेगा, आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, इतना कैश प्राइज मिलेगा, तो लाइक दैट गोना बी कॉल्ड स्टाफ सेल्स प्रमोशन. इट मीन्स there could be three types of sales promotions. First, consumer sales promotion. Second, trade sales promotion. And third, staff sales promotion. Sales staff promotions. और what we can do basically with these promotions, अगर consumer promotions हैं तो इसका objective क्या हो सकता है? Objective could be to कि आप भाई ज़्यादा परचेजेस करो. और ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि अगर आपने पहले ट्राई नहीं किया, क्योंकि हमें जब भी चीज़ें पता चलती हैं कि अगर कोई कंपनी है वो प्राइस को अपना 30-40% कम कर देती है, तो अगर हमने कभी नहीं भी उसके बारे में प्लान किया होता तो हम कहते हैं अच्छा यार ट्राई करें, लेट्स ट्राई इट, इसको ना यूज़ करते हैं. अब तो काफ़ी लाइक इसकी प्राइस बड़ी कम हो गई है. तो लाइक समटाइम कंपनीज रिड्यूस द प्राइस सिर्फ सेल्स बढ़ाने के लिए नहीं करती. समटाइम वो अपनी प्रोडक्ट को ट्राई करवाना चाहती है कि लोग उसको यूज़ करें. एक आदमी इसको यूज़ करेगा एंड देन फाइंड इट कि बड़ी अच्छी प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट टाइम बाय करेगा. तो समटाइम हम बहुत सारी अच्छी प्रोडक्ट को ट्राई भी नहीं कर रहे होते, कंज्यूमर ट्राई नहीं करता. जब ट्राई नहीं करता तो वो लाइक उस प्रोडक्ट को यूज़ करना नहीं शुरू करता. सो देयरफॉर समटाइम कंपनी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सेल्स को इंक्रीज करना नहीं, समटाइम अपनी प्रोडक्ट को ट्राई करवाना भी होता है. तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट को ट्रायल करवाना चाहते हो तो देन आप इस तरह के इंसेंटिव ऑफर कर सकते हैं. और समटाइम आपका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है अभी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हों. लेकिन सेल्स प्रमोशन मोस्टली हम इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं कि हमारी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो. इसके लिए हम फ्री सैम्पल्स भी कर सकते हैं, डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं, कूपन्स भी एंड कंपटीशंस भी करवा सकते हैं. इसकी हम इन एग्जांपल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन नेक्स्ट में. ट्रेड प्रमोशन में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि अच्छा भाई अगर आप इतनी क्वांटिटी बाय करोगे तो हम आपको इतने पैक फ्री में देंगे. समटाइम पेप्सी करती है कि अच्छा जी आप ना अगर 20 पैक्स बॉटल्स के बाय करोगे तो आपको एक पैक फ्री में मिलेगा. अब वो एक पैक फ्री में लेने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल बाय 20 पैक्स ऑफ बॉटल्स. तो लाइक वो स्टॉक के साथ हो सकता है. अगर आप भाई इतनी वॉल्यूम की क्वांटिटी बाय करोगे तो देन आपको 20%, 10%, 5% डिस्काउंट मिलेगा. तो लाइक सो दैट कुड बी सेल्स प्रमोशंस. तो समटाइम हम अपनी ऑब्जेक्टिव जो है हम अपने स्टाफ सेल्स प्रमोशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं. दैट वी कैन ऑफर इंसेंटिव टू द सेल्स स्टाफ और इन ऑर्डर टू प्रमोट द सेल ऑफ अ कंपनी. अब हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो ये अवेलेबल है कि मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, दैट इज कूपन्स, प्रीमियम्स, मनी ऑफ, बोनस पैक, फ्री सैंपल्स, प्राइस प्रमोशंस एंड लॉयल्टी कार्ड्स. लॉयल्टी कार्ड से हम स्टार्ट करते हैं. ये आपने देखा होगा अगर किसी थोड़े से बड़े स्टोर पे जाए ना, लाइक दे ऑफर यू कार्ड, उसके लिए नेम वर्ड मोस्टली मार्केटिंग के टर्म्स में उसको लॉयल्टी कार्ड ही कहा जाता है. लेकिन वो एक कार्ड देते हैं, उसके ऊपर नंबर लिखा होता है. बस हम साइवाल में भी चले जाएं तो ये एस स्मार्ट पेल वाले भी अपना एक ना कार्ड देते हैं. वो जब भी आप चीज़ें बाय करेंगे तो आप वो कार्ड को स्वैप करोगे, उस नंबर एंटर करोगे और वो डेटा जितनी आपने परचेजेस की हैं वो आपके उस कार्ड में एंटर हो जाएंगे कि इस आदमी ने इतनी क्वांटिटी की परचेजेस की हैं, इसने 20,000 की 40,000 की परचेजेस की हैं. अब वो उस कार्ड के साथ एक इंसेंटिव अटैच कर देते हैं कि अगर आप से 20,000 की शॉपिंग कर लोगे तो आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा. अब जब तक आपकी 20,000 की शॉपिंग कंप्लीट नहीं होगी आपको वो 5,000 का इंसेंटिव नहीं मिलेगा. अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने यू विजिटेड एसएस मार्ट दिस टाइम और आपने शॉपिंग कर ली 15,000 की. अब आपको 500 का इंसेंटिव तो नहीं मिल सकता. अब हम क्या करेंगे? वो लॉयल्टी कार्ड हमारे पास है, वो कार्ड उसमें डेटा एंटर हो चुका है. अब हम नेक्स्ट टाइम अगर हम बाय करना चाहते हैं
तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा यार हमने कहीं और से भी तो बाय करना है, लेट्स गो टू एस एस स्मार्ट और उधर से बाय करते हैं। और आप उधर क्यों जा रहे हैं, आप वो 500 का इंसेंटिव लेना चाहते हैं। सो दैट्स वाई वी आर विजिटिंग दैट आउटलेट इन ऑर्डर टू गेट इंसेंटिव ऑफ 500। तो हम उधर जाएंगे, उधर से शॉपिंग करेंगे और फिर कार्ड स्वैप करेंगे ताकि हमें वो 500 का वो वाउचर मिल जाए, 500 का डिस्काउंट मिल जाए, ताकि हम वो 500 की रुपए की कोई चीज़ें बाय कर लें। ये लॉयल्टी कार्ड है। अब हमारे यहाँ वैसे पाकिस्तान में अभी लाइक साहिवाल में तो इतना सोफिस्टिकेटेड है नहीं, मैंने पाकिस्तान में भी इतना सोफिस्टिकेटेड लाइक ये लॉयल्टी कार्ड्स नहीं हैं। बाहर यूके में तो बड़े आपको लॉयल्टी कार्ड्स आपको दिए जाते थे, उसमें तो इवन आपको वो कूपन सेंड करते थे कि जो चीज़ें आप बाय कर रहे हैं इवन आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जांपल आप योगर्ट ज़्यादा बाय कर रहे हैं तो जब कभी वो प्रमोशन आती है वो योगर्ट के ऊपर कोई अगर प्रमोशन है या इंसेंटिव है तो वो योगर्ट के ऊपर देंगे कि अच्छा आप योगर्ट बाय करें, इस पर ये 10 पेंस ऑफ हैं, इस पर 20 पेंस ऑफ हैं, इस पर 1 पाउंड ऑफ है। लाइक जो प्रोडक्ट आप बाय करते हैं उसके ऊपर वो आपको इंसेंटिव देते हैं, जो आपकी लाइक आपकी उसमें रूटीन में बाइंग हो रही होती है। तो वो बड़े सोफिस्टिकेटेड कार्ड्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतने सोफिस्टिकेटेड कार्ड्स नहीं हैं। तो इसको हम थोड़ा सा और भी इसको देख भी सकते हैं, लाइक इसको हम इधर लिख के भी चेक कर सकते हैं। ये देखें जी लॉयल्टी कार्ड हैं, ये टेस्को का है लॉयल्टी कार्ड। ये टेस्को एक उधर सुपर मार्केट थी, ग्रॉसरी और लाइक उसमें सुपर मार्केट ही थी। तो लाइक ये उनका देखें क्लब कार्ड, ये लॉयल्टी कार्ड है, ये जो आप देख सकते हैं पिक्चर में। इस तरह कोई और भी आ सकती है, या वेट रोज का, स्पार्क का, बूट्स का, लाइक ये लॉयल्टी कार्ड्स हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं जी सर। ये जी दीज आर लॉयल्टी कार्ड्स। ये आप देख सकते हैं ये डिफरेंट कंपनीज के कार्ड्स हैं, तो इस तरह के वो बना लेते हैं। इस पे देखें नंबरिंग, ये ऐसे लग रहा है जिस तरह हमारे एटीएम्स कार्ड्स होते हैं। तो लाइक दीज आर लॉयल्टी कार्ड्स। तो जब भी हम बाय करते हैं तो हम इनको ना स्वैप करते हैं उस मशीन्स में, फिर जितनी भी हमने परचेजेस की होती हैं और जो भी परचेजेस की होती हैं वो सिस्टम में चली जाती हैं, और उससे कंपनीज को ये भी पता चलता रहता है कि लोग किस तरह की चीज़ें बाय करते हैं और कितना फ्रिक्वेंटली बाय करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को मार्केट में अपने आउटलेट में अवेलेबल भी करते हैं। अब हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है, हमें तो कस्टमर आता है एक दिन आके पूछता है कि अच्छा ये चीज़ अवेलेबल है, हम कहते हैं नहीं अवेलेबल जी, वो 10 दिन बाद भी अवेलेबल नहीं होती। अब ये कंपनीज बड़ी स्मार्ट कंपनीज हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा डेटाबेस मेंटेन कर लिया है। अब वो आपका पूरा रिकॉर्ड रखती हैं कि लोग क्या चीज़ें बाय कर रहे हैं, फिर उस बेसिस पे वो उन चीज़ों को अवेलेबल करने की कोशिश करती हैं और कस्टमर को इंसेंटिव भी देती हैं। उनको ना कार्ड भी भेजेंगे, इवेंट्स पे उनको कार्ड भेजेंगे, ग्रीटिंग्स उनको भेजेंगे, उनको ख़ास किस्म के इंसेंटिव भेजेंगे, वाउचर्स भेजेंगे कि ना जनाब आप ये बाय कर सकते हैं पर्टिकुलर ओकेजन पे। आप देखें अगर आपको कोई ईद पे कोई कार्ड विश करता है या सेंड करता है स्पेशल, तो आप कितना ऑनर फील करते हैं। तो सिमिलरली कंपनीज अपने कस्टमर्स को के साथ भी ऐसे ही ट्रीट करती हैं, उनको कार्ड भेजती हैं। तो ये लॉयल्टी कार्ड्स हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास था लाइक कोपन्स। अब हमारे यहाँ ऐसे कोपन्स होते नहीं है, मैं ना आपको एक ना इधर से ना बताता हूँ। हमारे यहाँ कोपन्स है नहीं, इसलिए हमें ना अंडरस्टैंड नहीं हम कर पाएंगे। ये जी कूपन है, आप ये देखें। अब वो टेस्को का आपने जो कार्ड बाय किया हुआ था ना लॉयल्टी कार्ड, उसके ऊपर आपको, आप जब भी बाय करेंगे चीज़ें आउटलेट पे जाएंगे और उसको बाय करेंगे तो आप उसको स्वैप करोगे मशीन में, तो वो पूरा डेटा उस कार्ड में चला जाएगा। फिर कंपनी ये देखो ये 5 पाउंड जिधर ये कर्सर है, ये 10 पाउंड का वाउचर आपको घर पे डिलीवर होगा। ये देखें ये एड्रेस लिखा हुआ है नीचे, इधर मेरा कर्सर है, और ये 5 पाउंड और ये 10 पाउंड 50 पेंस ऑफ और 60 पेंस ऑफ। तो ये आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो फिर आप क्या करोगे, जब आपने नेक्स्ट टाइम ग्रॉसरी बाय करनी है तो आप क्या करोगे, आप उस आउटलेट पे जाओगे और आउटलेट पे जब आपने से 20 पाउंड की शॉपिंग करनी तो 10 पाउंड आप एक्स्ट्रा पे करोगे और 10 पाउंड का ये वाउचर दे दोगे उनको। तो आप लाइक ये कूपन है। अब देखो अगर ये कूपन ना आता तो आप क्या करते कि आप किसी और आउटलेट पे भी जा सकते थे शॉपिंग करने के लिए, लेकिन अब कंपनी ने आपको ये कूपन सेंड कर दिया।
अब आपने ये 10 पाउंड का इंसेंटिव को कैश करवाने के लिए व्हाट यू आर डूइंग, आप उसी टेस्को को विजिट कर रहे हैं, आप अपनी ग्रॉसरी उसी टेस्को से बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें, इस कूपन ने आपको फोर्स किया एक्स्ट्रा क्वांटिटी और चीज़ें बाय करने से, उसी आउटलेट से बाय करने पे आपको फोर्स किया। तो देखें, दीज आर कॉल्ड कूपन्स। अब सम टाइम कूपन एक जेनेरिक होता है कि आप कोई भी 20 पाउंड की शॉपिंग करोगे या 30 पाउंड की या 40 पाउंड की, तो आपको ये 10 पाउंड उसको यूज़ कर सकते हैं। सम टाइम कंपनी क्या करती है कि नहीं भाई, ये 50 पेंस या ये 2 पाउंड जो है ना, ये सिर्फ इसी आइटम पे, अगर यही आइटम बाय करोगे तो आपको 2 पाउंड अवेलेबल होगा। अब ये देखें, अब ये 50 पेंस का वाउचर है, कूपन है, तो इसके नीचे देखें, व्हेन यू स्पेंड 2 पाउंड और मोर ऑन ब्रेड फ्रॉम द बेकरी। अब उन्होंने कहा ये 50 पाउंड आप तब यूज करोगे जब आप बेकरी आइटम 2 पाउंड से ज्यादा के बाय करोगे, फिर इसको यूज कर सकते। अगर आप 2 पाउंड से नीचे की बेकरी आइटम बाय करो तो ये 50 पेंस आप यूज नहीं कर सकते। अब देखें, एक तरफ उन्होंने आपको फोर्स कर दिया कि आप 2 पाउंड से ज्यादा की शॉपिंग करें, और फिर आपको उन्होंने फोर्स ये भी कर दिया कि आप लाइक ये बेकरी आइटम बाय करें। तो लाइक कूपन्स को डिस्कस कर रहे थे कि समटाइम कंपनीज क्या करती हैं कि वो जो इंसेंटिव देती हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे दे देती हैं, और पर्टिकुलर प्रोडक्ट की भी एक सर्टन क्वांटिटी की परचेज करने पे वो कूपन देती हैं। जिस तरह कि ये कहा था कि अगर आप बेकरी आइटम बाय करोगे तो देन यू कैन यूज 50 पेंस ऑफ, और बेकरी आइटम में भी इफ यू आर गोइंग टू बाय 2 पाउंड और मोर देन यू विल बी एबल टू यूटिलाइज दिस 50 पेंस ऑफ। तो लाइक इस तरीके से ये देखें, अब ये कूपन जब कंपनी हमें सेंड कर देगी तो दिस कूपन विल फोर्स अस टू विजिट टेस्को, और हम उधर जाएंगे और इस कूपन को यूटिलाइज करने के लिए हम वो टेस्को को विजिट करेंगे और उधर से हम बेकरी आइटम बाय करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह अगर हम जाएंगे तो ज़ाहिर बाय करेंगे तो कंपनी की सेल देखें कैसे इंक्रीज हो रही है कि कूपन हमें मोटिवेट कर रहा है। सिमिलरली अब इन कूपन्स को लेने के लिए कंपनी के लॉयल्टी कार्ड जो हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं। अब जब एक कंपनी का हमने लॉयल्टी कार्ड बाय कर लिया तो हम नेक्स्ट टाइम उसमें हमने जो भी चीज़ें परचेज करनी, तो हम छोटी मोटी शॉप से बाय करने से बेहतर है कि हम चाहेंगे कि हम लेट्स गो टू टेस्को और उधर से बाय करें ताकि उसका लॉयल्टी कार्ड भी हम यूज़ कर सकें। सो इन दिस वे आई थिंक आपको ये दो ऑप्शन क्लियर होंगी कि लॉयल्टी कार्ड्स क्या होते हैं एंड कूपन्स क्या होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट प्रीमियम। सर कूपन की टाइप जो हमारे यहाँ फूड पांडा देता है वो भी हो सकती है? कूपन वो तो डिस्काउंट देते हैं सर्टन, आई डोंट नो कि क्या कैसे वो कूपन दे रहे हैं, मुझे नहीं लाइक। सर वो होता है कि आप अगर 800 की शॉपिंग करोगे तो 300 का वाउचर आप यूज कर सकोगे। अच्छा, कोई वाउचर वो सेंड करते हैं ऑनलाइन ऐसा ही? जी ऐसे ही। अगर कोई वाउचर अगर वो 300 का वाउचर सेंड करते हैं तो यस, दैट कुड बी लाइक कूपन, आप कह सकते हैं दैट कुड बी कूपन कि वो अगर वाउचर आपको सेंड कर देते हैं। समटाइम तो ये सिंपली ये होता है ना कि आपको वो वाउचर वगैरह सेंड नहीं करते, आपको वो क्या करते हैं कि आपको सिंपली वो डिस्काउंट दे देते हैं, जिस तरह कि 10% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। मसलन ये टमीज़ वाले, वो पिज़्ज़ा वाले, वो कह रहे थे कि अच्छा अगर आप इतनी ये चीज़ें बाय करोगे तो आपको ना संडे को बाय करोगे तो 10% आपको ऑफ मिलेगा स्ट्रेट वे। समटाइम वो कूपन आपको सेंड कर देते हैं कि ये आप कूपन को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर 300 रुपीज़ का कूपन यूज़ कर सकते हो। और समटाइम हम उस इंसेंटिव को भी समटाइम हम क्वांटिटी के साथ या प्राइस के साथ अटैच कर देते हैं, जिस तरह कि आप बता रहे हैं कि 700 रुपीज़ की अगर शॉपिंग बाय करोगे तो देन यू कैन यूटिलाइज दिस कूपन ऑफ 300। यस अब समटाइम बेसिकली कंपनीज एक प्रीमियम भी एक ऑफर यूज़ कर सकते हैं। लेट मी राइट इट, थोड़ा सा क्लियर कर लें। हाँ यस, प्रीमियम आपने कभी आप जाए ना मैकडोनल्ड पे, तो मैकडोनल्ड में
आप ना एक पर्टिकुलर बेबीज़ के लिए पर्टिकुलरली आप ना वो बाय करें ना एक प्रोडक्ट, कोई बर्गर वगैरह बेबी के लिए, तो उसके साथ ना वो टॉयज़ भी दे देते हैं। अब वो जो चीज़ है जिसके लिए आपसे पे नहीं किया जा रहा, आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा, बट दे आर गिविंग यू फॉर इट, गिविंग यू फॉर दैट, तो दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। वो भी एक सेल्स प्रमोशन है। आप बल्कि इसके साथ एक ऐसा भी देख सकते हैं कि समटाइम यू आर बाइंग अ लैपटॉप। हमारे यहाँ तो खैर हम क्योंकि हम नॉन ब्रांडेड लैपटॉप, सॉरी नॉन ब्रांडेड तो नहीं, हम ना लाइक हम यूज प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, लैपटॉप बाय करते हैं, फर्स्ट हैंड हम बाय नहीं करते। तो वो क्या करती है, कंपनी से हम लैपटॉप बाय कर रहे हैं, से हम ना नया लैपटॉप बाय करते हैं। अब वो जो लैपटॉप हम बाय करते हैं उसके साथ समटाइम कंपनी देती है कि अच्छा ये एंटीवायरस अगर वैसे बाय करोगे तो आपको 20 पाउंड का मिलेगा या 2000 रुपीज़ का मिलेगा, लेकिन क्योंकि आपने लैपटॉप बाय किया है सो वी आर गिविंग यू एंटीवायरस एज ए फ्री। वो उसके साथ एडिशनल दे रहे हैं। अब हालांकि लैपटॉप वो प्रॉपर फंक्शनिंग है, सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन उसमें एंटीवायरस नहीं, तो एंटीवायरस आपको एडिशनल आपको दे रहे हैं, तो दैट इज अ प्रीमियम। आपने उसके लिए पे नहीं किया बट कंपनी इज गिविंग यू एज अ गिफ्ट। इसी तरह समटाइम यू आर बाइंग अ मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन में इसमें लाइक सर्टन एसेसरीज हैं कि अच्छा ये ना आप ना ये इसकी हैंड फ्री और लाइक चार्जर होगा, नॉर्मली हैंड फ्री नहीं होगी। तो कंपनी कहती है कि अच्छा आपने ये मोबाइल परचेज किया है तो इसके साथ सिर्फ ये चार्जर मिलेगा, लेकिन हम आपको साथ ये हैंड फ्री एज ए फ्री दे रहे हैं। अब वो जो हैंड फ्री है दैट इज अ प्रीमियम फॉर यू, यू हैवंट पेड फॉर इट बट कंपनी हैज गिवन यू हैंड फ्री एज ए गिफ्ट। तो वो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज अ प्रीमियम सेल्स प्रमोशन। अब सम टाइम होता क्या है, अब वो प्रीमियम हमें कैसे अट्रैक्ट करता है कि अब हमने मोबाइल तो बाय करना है लेकिन एक कंपनी हमें हैंड फ्री नहीं ऑफर कर रही, वाइल सेकंड कंपनी इज ऑफरिंग अस हैंड फ्री एज ए फ्री। तो हम क्या करेंगे, उस इंसेंटिव को अवेल करने के लिए व्हाट वी गोना डू, वी गोना बी बाइंग मोबाइल फोन उसी कंपनी से जो हमें हैंड फ्री ऑफर करी, तो दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। सिमिलरली एक कंपनी एंटीवायरस नहीं ऑफर कर रही थी, दूसरी कंपनी ऑफर कर रही थी एंटीवायरस, और दोनों की प्राइस मोर और लेस सेम थी, तो हम ऐसी कंपनी से प्रोडक्ट या लैपटॉप बाय करेंगे जो हमें एंटीवायरस भी फ्री में दे रहा है। तो लाइक प्रीमियम इज अ सेल्स प्रमोशन। तो हम हमारी इस तरह लाइक रियल लाइफ में से बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी प्रीमियम की। मसलन आप कहते हैं जब रेस्टोरेंट पे चले जाते हो, रेस्टोरेंट्स में आप खाना ऑर्डर करते हो कि आप जी मुझे ना बिरयानी ऑफर कर दें, बिरयानी बाय कर लें। अब एक्चुअली से वो 200 चार्ज करते हैं बिरयानी के लिए, उसके साथ रायता सैलड और उस चीज़ के लिए वो आपसे ना चार्ज नहीं करते, वो आपको एज ए सैलड आपको फ्री में दे देते हैं। तो वो जो सैलड आपको फ्री में ऑफर करें दैट इज प्रीमियम फॉर दैट फूड, उसके वो चार्ज नहीं कर रहे। अगर वैसे आप उनको कहें जी जस्ट आई वांट टू जस्ट बाय अ सैलड, तो वो कहेंगे अच्छा जी आपको ना यू हैव टू पे 50 रुपीज़। लेकिन इफ यू आर बाइंग देयर फूड एंड अलॉन्ग विद द फूड दे आर ऑफरिंग यू अ सैलड एज ए फ्री, तो लाइक वो सैलड उनका प्रीमियम है, एक एडिशनल आपको प्रोडक्ट एज ए गिफ्ट के तौर पे वो दे रहे हैं कि आप इसको खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो लाइक इसी तरह आप कोई फूड प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हैं, फास्ट फूड बाय कर रहे हैं, तो सम टाइम वो क्या करते हैं कि वो नॉर्मल सॉसेज जो होते हैं, चिली सॉस और गार्लिक सॉस और ये टमाटो केचप वगैरह ऑफर कर देते हैं, लेकिन सम टाइम वो आपको आप बाय करते हो तो आपको स्पेशल किस्म का सॉस देते हैं एज ए फ्री, तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ प्रीमियम है। या उसके साथ आपको कुछ और प्रोडक्ट आपको एज ए फ्री में दे देते हैं दैट एज ए प्रीमियम। सो लाइक दैट इज आल्सो अ सेल्स प्रमोशन। अब उस प्रीमियम को अवेल करने के लिए हम नई उस प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, और जब परचेज करेंगे तो कंपनी की प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज होंगी। अब ये देखें, ये जो भी इंसेंटिव हम डिस्कस कर रहे हैं, इन सारे इंसेंटिव से कंपनी की सेल्स इंप्रूव होती है, क्योंकि ड्यू टू दीज इंसेंटिव कंज्यूमर आर बाइंग, consumers are trying to buy companies products, so we call it like sales promotion. इस तरह मनी ऑफ की भी हमें एग्जांपल मिल जाएंगी। ये तो सिंपल सी लाइक कि आप सर्टेन अमाउंट ऑफ कर देते हो कि जी देखें जी बाय 2 गेट 10 फ्री, 10 पाउंड।
बाय वन गेट वन फ्री, फ्री शिपिंग, लाइक दिस मनी ऑफ लाइक सॉर्ट ऑफ, इसमें बीसियों ऑप्शंस हैं। ये जो हम प्रमोशन डिस्कस कर रहे थे कि आ, आ, कि ये लेडीज़ का भी ब्रांड शूज़ का क्या नाम था, अब भूल गया, स्टाइलो। स्टाइलो ऑफर्स 50% ऑफ, तो उन्होंने मनी ऑफ दे दिया। अब वो जो उन्होंने 51% डिस्काउंट दिया है, ऑफ दिया है, अब उस ऑफ को हम लेने के लिए हम क्या करेंगे, वी गोना बी रशिंग टुवर्ड्स देयर आउटलेट, तो मनी ऑफ। तो ये तो लाइक वेरी सिंपल। अब वो मनी ऑफ एक ऑफर है सेल्स प्रमोशन की, एंड टू अवेल दैट इंसेंटिव वी आर बाइंग कंपनीज प्रोडक्ट्स। बोनस पैक, बोनस पैक में हम क्या करते हैं, हम 5-7 प्रोडक्ट्स को ना मैं ना अभी आपको ना एग्जांपल इधर से दिखाता हूँ। बोनस पैक सेल्स प्रमोशन, ये बोनस पैक है। अब देखें, अब ये इसका ना मैं और थोड़ा सा आपको, ये भी एक बोनस पैक है। आप ये बैटरीज हैं, बैटरी के ये वैसे अगर इंडिविजुअल आप ये बाय करोगे तो कम का मिलेगा, लेकिन अगर आप ये, आप देखो 4 AA बाय करें प्लस 2 फ्री। अब ये देखें, एक्चुअली अगर 4 का आप बाय करोगे तो उसकी कॉस्ट होगी से 200 रुपीज़, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ये 4 इकट्ठे बाय करोगे तो देन उसके साथ 2 एज ए फ्री मिलेगा। तो ये बोनस पैक है, इसमें पूरा ये पैकेट बाय करना पड़ेगा हमें। इसी तरह लाइक ये है परचेज 3 in 1 पैक, ये कोई लाइक आई डोंट नो कौन सी प्रोडक्ट है, बट इन तीनों का उन्होंने बंडल बना दिया और लाइक हम उसको बाय कर सकते हैं। अब ये देखें, पैक है, 3 पैक्स उन्होंने बना दिए और इनको बोनस पैक, लाइक दीज आर 3 पैक्स ऑफ ये सर्टन, ये रोल है, इसे किचन रोल कहते हैं। किचन रोल अगर आप ये 6 बाय करेंगे तो देन आपको सर्टेन सेविंग होगी, तो ये बोनस पैक आपको, अगर आप इंडिविजुअल बाय करोगे तो इन 6 रोल्स की अगर कॉस्ट को आप सम करोगे तो ये पैक की कॉस्ट से ज़्यादा होगी। इट्स मीन कि पैक की कॉस्ट कम है और इंडिविजुअल आइटम्स की अगर कॉस्ट को सम करोगे तो वो कॉस्ट ज़्यादा होगी। अब कंपनी ने वो ये जो प्राइस का डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड इंसेंटिव। अब उन्होंने आपको ये इंसेंटिव दिया ताकि आप ये 6 रोल बाय करो, अदरवाइज आपको शायद आपको जरूरत तो 1-2 रोल की होगी, बट ड्यू टू दैट इंसेंटिव वी आर नॉट बाइंग 2, वी आर बाइंग 6 रोल्स। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हम ये हमारे यहाँ भी ये है कि हम स्टोर में जाएं तो उन्होंने विनीगर, चिली सॉस और सोया सॉस का एक पैक बना के 3 बॉटल्स का एक पैक बना देते हैं और उनकी प्राइस टैग कर देते हैं। अब हमें शायद सोया सॉस की या विनीगर की ज़रूरत होती है, चिली सॉस की ज़रूरत नहीं होती, तो हम क्या करते हैं कि अच्छा यार ये फ्री में मिल रही है और तकरीबन मोर और लेस 1.5 बॉटल की कॉस्ट में हमें 3 बॉटल मिल रही है, तो लेट्स बाय दिस होल पैक। अब देखें उस इंसेंटिव ने हमें मोटिवेट किया कि टू बाय 3 बॉटल्स, अदरवाइज हम 1 बॉटल बाय करते, और इन अदर वर्ड्स अगर वो इंसेंटिव ना देते तो हम वही बॉटल बाय करते जिसकी हमें ज़रूरत थी, लेकिन ड्यू टू दैट इंसेंटिव हमने वो बॉटल भी बाय कर ली जिसकी शायद आज हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये कंपनी के टैक्टिक्स हैं। तो अब देखें इंसेंटिव जब कंपनीज कंज्यूमर को देती हैं तो कंज्यूमर कैसे मोटिवेट होता है उसकी प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए। तो लाइक दैट दिस इज कॉल्ड बोनस पैक। आई होप आपको बोनस पैक की भी समहाउ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। लेट्स मी फाइंड सर्टेन अदर एग्जांपल्स अगर कोई मिल जाती है तो। ये टाइड्स जी स्टेन रिलीज, ये टाइड्स का उन्होंने कोई पैकेट डिटर्जेंट का बना के रखा है, इसमें बताया कोई क्वांटिटी उन्होंने रखी होगी कि अगर इतना बाय करोगे तो देन आपको इतनी प्राइस में मिल जाएगा, तो ये उनका एक बोनस पैक है।
लाइक दिस इज कॉल्ड बोनस पैक। फ्री सैम्पलिंग तो आपको पता ही है। फ्री सैम्पलिंग मीन्स के आप स्मॉल स्मॉल सैम्पल अपने प्रोडक्ट्स के, उसी प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाहते हैं उसी के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि लोग इसको ट्राई करें, और ट्राई करें अगर उन्हें अच्छी लगती है तो ज़ाहिर है ओरिजिनल प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हैं। तो फ्री सैम्पलिंग, आप फ्री में ऐसे सैम्पलिंग दे देते हैं। कुछ लोग बड़े ही स्मार्ट होती हैं कंपनीज, वो अपनी प्रोडक्ट के फ्री सैंपल दूसरी प्रोडक्ट के साथ अटैच कर देते हैं एज इंसेंटिव के तौर पे। अब हम वो फ्री सैंपल लेने की खातिर उस प्रोडक्ट को बाय भी कर लेते हैं। तो लाइक प्राइस प्रमोशन, प्राइस प्रमोशन भी समटाइम आपने सुना होगा कि अच्छा आप ये प्रोडक्ट बाय करें, और अगर बाय करोगे तो आप हमें अपनी डिटेल्स दे दें, और जब डिटेल दे दें तो हमारा ना लकी ड्रॉ होने जा रहा है अगस्त के 14 अगस्त पे, तो अगर आपका नाम आ गया तो हम ना एक गाड़ी ऑफर कर रहे हैं। अब प्राइस प्रमोशन, अब हम उस लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए उस प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम उस कंपनी की प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। तो लाइक दैट इज अ सेल्स प्रमोशन। तो कि उस प्राइस को विन करने के लिए हम उस कंपनी की प्रोडक्ट को बाय करें। अब ये जो सारी हमने एग्जांपल डिस्कस की हैं डिफरेंट टाइम, कूपन्स, प्रीमियम, मनी ऑफ, बोनस पैक, फ्री सैम्पलिंग, प्राइस प्रमोशन एंड लॉयल्टी कार्ड्स, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको लाइक कंपनीज की प्रोडक्ट को बाय करने के लिए मोटिवेट करती है। आई थिंक कि आपको कंज्यूमर प्रमोशंस अंडरस्टैंड आपने कर लिए होंगे। लेट्स कम टू ट्रेड प्रमोशन। ये वो जो पिछली हमने सारी ऑप्शन डिस्कस की हैं वो सारी हैं कंज्यूमर्स को हम इंसेंटिव जब ऑफर करते हैं। अब हम देख रहे हैं ट्रेड प्रमोशन कि कंपनीज ट्रेडर्स को, मिडिल मैन को कैसे इंसेंटिव देती है। तो उनको प्राइस डिस्काउंट देती है, उनको भी प्राइस डिस्काउंट देती है। उन्हें कहती है कि अच्छा यूं करो कि अगर आप हमारी प्रोडक्ट बाय करोगे तो हम आपको इस पे ना 5% 10% ऑफ है, स्ट्रेट अवे आपको वो डिस्काउंट दे देते हैं कि ये जी इतना % डिस्काउंट। समटाइम वो डिस्काउंट क्वांटिटी के साथ भी अटैच कर देते हैं कि अगर आप 20 पैक बाय करोगे तो देन आपको ना 5% या 10% हम आपको डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज नहीं। तो अगर इस तरह की कोई ऑफर है तो वो उनकी प्राइस डिस्काउंट है। प्रमोशनल प्राइस डिस्काउंट सपोर्ट भी समटाइम हम दे देते हैं। समटाइम ना प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है होता है स्टार्ट इंट्रोडक्शन फेज में, तो वो कहते हैं कि अच्छा अगर ये प्रोडक्ट आप बाय करोगे तो इसकी वैसे तो प्राइस 5000 है, लेकिन इस आप अगर बाय करोगे तो ये 4000 में अवेलेबल है। और ये जस्ट एक प्रमोशनल प्राइस सपोर्ट आप इसको कह सकते हैं कि प्रोडक्ट आपके इंट्रोडक्शन फेज में है तो उसके लिए आपने वो प्राइस समहाउ सेट की है ताकि लोग उसको बाय कर रहे हैं। एक्चुअली उसकी प्राइस ज़्यादा है। आप इन स्टोर डिस्प्लेस भी ऑफर कर सकते हैं। क्या आपने देखा नहीं कि पेप्सी के रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, इसी तरह ओमोर के अवेलेबल हैं, इस तरह कोक के अवेलेबल हैं, इस तरह बाकी एडम्स फूड्स के अवेलेबल हैं। तो लाइक उनके अपने रेफ्रिजरेटर भी अवेलेबल हैं, इसी तरह उनके डिस्प्ले रैक्स भी अवेलेबल होते हैं। इनको हम कहते हैं इन स्टोर डिस्प्लेस। तो वो इस तरह के इंसेंटिव्स कंपनीज अपने ट्रेडर्स को, रिटेलर्स को दे देती है ताकि आप हमारी प्रोडक्ट को बेचें। अब जाहिर है अब एक पेप्सी की उधर रेफ्रिजरेटर या कोक का पड़ा है तो जाहिर है कंपनी उन्हीं की प्रोडक्ट को अपनी आउटलेट में वो रखेगी ना, रिटेलर जो है। इसी तरह आपने देखा होगा कि ये ओप्पो के मोबाइल्स और लाइक वीवो के मोबाइल्स के ये आउटलेट पे वो प्रोडक्ट, मोबाइल फ़ोन की प्रोडक्ट को वो कहते हैं कि हम ना आपका पूरा इंटीरियर सेट कर देते हैं लेकिन आप हमारी प्रोडक्ट को बेचोगे। तो लाइक ये इन स्टोर डिस्प्लेस हैं, प्रमोशनल सपोर्ट आप दी जा रही है। तो लाइक ये भी हो सकता है। हम फ्री गुड्स भी दे सकते हैं कि अगर आप 20 पैक्स बाय करोगे तो हम उसके साथ 1 पैक फ्री भी देंगे। लाइक दीज आर सर्टन सेल्स प्रमोशन ऑफर्स। अलाउंसेस में ये होता है बेसिकली कंपनी की मसलन एक प्रोडक्ट है, कंपनी लैपटॉप या कंपनी अपनी एक से डिटर्जेंट बेच रही है। अब कंपनी कहती है कि ये डिटर्जेंट जो है ना इसकी प्राइस है से 1000 जो कंज्यूमर को मिल रहा है, लेकिन कंपनी जब रिटेलर को दे रही है तो वो से 900 की बेच रही है। अब उसकी कॉस्ट 900 है रिटेलर के लिए, रिटेलर उसको 1000 का बेच रहा है। अब फर्दर सपोर्ट के लिए वो क्या करती है, कंपनी कहती है कि अच्छा इसमें ये इसकी
कॉस्ट तो इसकी जो रिटेलर की जो प्राइस थी वो 900 थी, लेकिन हम इसमें फर्दर भी कट कर देते हैं, वो उसमें फर्दर 50 रुपीज़ का या 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देते हैं। अब एक्चुअली उसकी प्राइस जो रिटेलर के लिए थी वो 900 रुपीज़ थी, लेकिन अब उसको रिटेलर ऑफर कर रहा है 800 में, कंपनी रिटेलर को 800 रुपीज़ में ऑफर करी। अब ये जो 100 एडिशनल दिया है ये उसका अलाउंसेज हैं जो कंपनी ने ट्रेडर को दिए। अब इस एडिशनल 100 रुपीज़ को अब देख रिटेलर को कितना बच रहा है, रिटेलर को 200 रुपीज़ बच रहे हैं। अब 800 का रिटेल कंपनी से बाय कर रहा है और 200 का बेच रहा है। अब इस इंसेंटिव को अवेल करने के लिए वो क्या करेगा, कंपनी की एडिशनल प्रोडक्ट्स को बाय करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से अब देखें सेल्स प्रमोशन कैसे कंज्यूमर्स को एंड रिटेलर्स को मोटिवेट कर रही हैं कि वो कंपनी की प्रोडक्ट को बाय करें। तो बेसिकली अब इसका इफेक्ट्स भी है सेल्स प्रमोशन का। अब हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया है इस सेशंस में कि सेल्स प्रमोशंस कंपनी कंज्यूमर को दे या रिटेलर्स को दे, उससे कंपनी की सेल इंक्रीज होती है। लेकिन कीप इन माइंड इसमें एक थोड़ा सा ना प्रॉब्लम भी है कि अगर आप कंटिन्यूसली सेल्स प्रमोशन लगाते रहते हो तो उसका लॉन्ग रन में उसकी सेल्स डिक्लाइन होती हैं। हाँ, आप ये करें कि सेल्स प्रमोशन आज दे दें, 10 एक दिन के लिए दें, उसमें देखें कैसे उन 10 डेज में सेल्स शूट करेंगी। लेकिन आपने एक दफ़ा सेल्स प्रमोशन लगाई और वो लगी ही हुई है तो उससे क्या होगा कि कंपनी की सेल्स लाइक लॉन्ग रन में वो कंज्यूमर उसको सीरियस ही नहीं लेगा। कंज्यूमर क्या है, इनकी तो सेल्स प्रमोशन हमेशा रहती है, तो वो क्या करेंगे कि वो कंपनी वो कंज्यूमर उसकी प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करेगा। वो कहेंगे अच्छा इसकी तो कल भी लगी होंगी, मुझे जाने की क्या ज़रूरत है, आज क्यों बाय करूं। तो इसलिए आपने सेल्स प्रमोशन लगानी है तो थोड़े से ड्यूरेशन के लिए देन उसको ऑफ कर देना है, फिर थोड़े से अरसे के लिए लगाओ, फिर उसको ऑफ कर दो, फिर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। अगर आप कंटिन्यूसली सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हो तो फिर देन वो लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा नहीं होगा, वो नुकसान होगा और कंपनी की सेल्स लॉन्ग रन में इंक्रीज होंगी। आप देख सकते हैं कि शॉर्ट रन में तो इंक्रीज हुई, लेकिन लॉन्ग रन में उसकी शॉप्स सेल्स इंक्रीज हो रही हैं। और बल्कि लॉन्ग रन में कंज्यूमर क्या माइंड बना रहे हैं कि यार इस कंपनी की प्रोडक्ट बिकती नहीं, इसलिए तो ये सेल्स प्रमोशन लगाए रखते हैं, इसकी सेल्स ही नहीं होती इसलिए तो ये लगाए रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपने कभी भी। ये एक जस्ट सजेशन है, सॉरी। तो इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं सेल्स प्रमोशन के encourage early adoption, create brand loyalty, promotion can attract new buyers, increase repeat purchases, promotion can devalue the brand। इसके ये डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, जिससे मैंने कहा कि अगर आप कंटिन्यूसली सेल्स प्रमोशन ऑफर कर रहे हो तो ये इसकी वैल्यू को डीवैल्यू भी कर सकते हैं ब्रांड को। occasionally only meet the interest of retailers, तो समटाइम ये भी होता है। तो लाइक ये सर्टन डिसएडवांटेजेस भी थे और एडवांटेजेस भी। इंक्रीज द सेल्स फॉर प्रमोशन, ये सर्टन अदर इंसेंटिव्स हैं। लाइक फ्रॉम माय साइड दिस इज ओवर। आई होप आपको ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा।